दाजु तपाईहरु कुनको अस्ति मैले भनेको थिएँ डाइरेक्ट नहाल्देऊ न यो अलिकति यतापट्टि जाइदेऊ कि यतापट्टि जाइदेऊ सिधा कहिले पनि हुँदैन नि तपाईहरुले याद गर्नु Welcome you, sir. With the due permission of Chair, we are going to start our program. The children of today will make the India of tomorrow. The way we bring them up will determine the future of the country. And only through right education can be a better order of society be built up. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं. By Nelson Mandela. With this beautiful quote, let us start our Grand Children's Day celebration and the State Award to Teachers 2021. Honorable Chief Minister of Sikkim, Sri Prem Singh Tama. Honorable Education Minister, Sri Kungani Malikcha. Honorable Council of Ministers. Honorable Member of Parliament, Sri Indrahang Subba, Honorable Member of the Legislative Assembly, Honorable Political Secretary to the Chief Minister, Sri Jayapal Khaling, Respected Chief Secretary, Sri S.C. Gupta, DGP and Special DGP, Additional Chief Secretary Education Department, Sri G.P. Upadhyaya, Additional Chief Secretaries and the Head of the Departments, invited dignitaries, guests and officials from the different departments, awardee teachers and students, principals, school heads and the faculty members from the different education institutions. Respected teachers, dear students, press and media, both electronic and print, ladies and gentlemen, I, Durga Shrestha, Faculty Diet Gantok, would like to extend my warm welcome to all of you in this grand Children's Day celebration and State Teacher Award 2021 on behalf of Education Department, and also wish you all a very happy Children's Day. Today is really a special day as today's celebration is a combination of Children's Day and the Teachers' Day, as many worthy teachers and students are going to get award today. It is a special day as it is celebrated each year on the birth anniversary of India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Children's Day is celebrated as a tribute to Pandit Nehru, fondly called Chacha Nehru. To begin with the celebration, may I request respected ACS Shri J.P. Upadhyaya sir to kindly offer a bouquet to the Honorable Chief Minister, who is the chief guest for today's program. We welcome our Education Minister. Welcome you, sir. We would like to welcome Padma Bhushan sir, Dr. Bindeshwar Pathak. If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path. On that note, I request Honorable Chief Guest for today's program, Honorable Chief Minister, Honorable Minister of Education, dignified personalities who is on the stage to kindly come forward for the lighting of ceremonial lamp and also for garlanding the portrait of Pandit Nehru and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Deepam Jyoti Param Brahma Deepena Harite Papam Sandhya Deepam Saraswati. Knowledge
which removes the darkness of ignorance, as by which all can be achieved. Deepam Jyoti Param Brahma, Deepam Jyoti Parayane, Deepe. The Additional Chief Secretary, Education, Sri G.P. Upadhyaya, to kindly deliver the welcome address. A very good morning and a very, very happy Children's Day to all dear children. आज पद्म भूषण बड़ा सम्मानित होनु भाको सुलभ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक. It's a great pleasure for me, privilege for me to welcome all the dignitaries, all the respected people who are sitting on the dais, and all respected teachers, students, school heads, awardee teachers, national, state awardee teachers, national awardee teachers who are present here, who have graced this beautiful function. We are indeed feeling very proud because we are all product of, we have all been taught by our teachers, and that's why we are all here. With these words, I'll end my address here. Once again, एक बार फेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय अनि सबै गणमान्य व्यक्तिहरू जुन बस्नु भएको छ स्टेजमा, अनि हाम्रो डिपार्टमेन्टको अति आदरणीय अध्यापक अध्यापिका, प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिकाहरू, heads of schools and all dear children. Once again, I welcome everybody warmly, and once again I wish all my dear children a very, very happy Children's Day. Jai Bharat, Jai Sikkim. Next we have Sulabh Sanitization Club Award to the teachers and the student. For offering this award to our students, Mr. Premanand Portal, Government Senior Secondary School, Timi, is receiving the award. Mr. Praveen Gurung, Government Secondary School, Rinchingpu. Next, right now Mr. Praveen Gurung, Government. Mrs. Ongmit Lepcha, Government Senior. Right now, we are also felicitating 3 students in advocating child rights to sanitization in their schools during Project Uttare. Government Senior Secondary School, Uttare. As we move on, we have Peling. Honor. We proceed towards the launching of private school registration portal. To do the honor, may I request Chief Guest, Honorable Chief Minister, Honorable Education Minister, Padma Bhushan Sri Bindeshwar Pathak, and Director Exam Sri Sonam Denzongpa to kindly come forward. Now we will proceed towards the launching of Nipun Bharat, the Sikkim chapter. For that, I would like to request Honorable Chief Guest, Honorable Guest of Honors, ACS and SPD, Samagra Shiksha, Sri Bhim Taral sir, to kindly come forward. As we move on, we have the launching of Agam COVID-19 School Readiness Project. Thank you all of you for the honor. Thank you so much.
As we move on, we have a screening of a documentary film by Sulabh International. Now we have felicitation to the Honorable Chief Minister, the chief guest for today's program, Honorable Minister Education, CS ACS Secretary Education, Mr. Kunal Dutt, General Manager, HR of Achilles Laboratory, by Padma Bhushan Dr. Bindeshwar Pathak, Founder, Sulabh International. I would like to request Mr. Rupak Roy Chaudhary to please assist him. It is really a very delighted moment as our Honorable Chief Minister of Sikkim is getting felicitation by Padma Bhushan Dr. Pathak. We'll still continue with the felicitation to the Honorable Minister Education. Applause. And we have also the felicitation. Alkane Laboratory. Mr. Right Kunal Datta is receiving the felicitation. So I want everybody to please give him a very big hand. It is congratulations to all of you. The felicitation still continues. I'm so happy to announce that Sri Anil Rasa is also getting felicitation. Bindeshwar Pathak by our Honorable Chief Minister, the chief guest of today's program. Padma Bhushan, Dr. Pathak. Congratulations, sir. Thank you so much. Congratulations, Rupak. That August is also launching a tap. So I request again Honorable Ministers to please kindly come forward. Just like to talk about Mr. Rupak Raj, associated with the school water sanitization and hygiene program in several government schools of Sikkim since 2010, and implementation projects like Garima, water sanitization and hygiene, wash and many more. Hence the Education Department, Government of Sikkim acknowledges and appreciates his untiring effort and felicitate him on this special day. As I said already that Sulabh International is an Indian-based social service organization that works to promote human rights, environmental sanitization, non-conventional sources of energy, waste management and social reforms through education. The founder for this organization is Padma Bhushan Dr. Bindeshwar Pathak. So now we will be having the screening of a documentary film by Sulabh International.
दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख दर्द बांटकर उनकी जिंदगी में निस्वार्थ भाव से खुशियां लुटाकर एक नई मिसाल कायम करते हैं। सुलभ सामाजिक सुधार और स्वच्छता आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ऐसा ही नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी हरिजन में लिखते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मां का कहना था कि उस बच्चे को तुम छू नहीं सकते क्योंकि वो अछूत है। गांधी जी ने अपने आप से सवाल किया, क्यों नहीं? और उसी दिन गांधी का विद्रोह आकार लेने लगा। यही साम्यता बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल में 2 अप्रैल 1943 को एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले बालक में भी थी। वो थोड़ा बड़ा हुआ तो दादी ने समझाया कि उनके घर सूप डगरा बेचने वाली इन औरतों को गलती से नहीं छूना है। बापू की तरह नन्हे विंदेश्वर ने भी वही सवाल पूछे थे, क्यों नहीं? और एक दिन वो भागकर उस औरत को छू लेता है। फिर तो घर में जैसे कोहराम मच गया। कड़कड़ाती ठंड में गंगा जल से उसे नहलाया गया। उनकी शुद्धि के लिए उनके मुंह में गोमूत्र और गोबर डाला गया। पर नन्हे विंदेश्वर के बाल मन ने यह सवाल पूछना जारी रखा, ये कैसी शुद्धि है जब हमारी आत्मा ही अपवित्र रह जाए? जब यही बालक बड़ा होकर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पटना विश्वविद्यालय पहुंचा तो यही बचपन के संस्कार उनके अंदर अकुलाहट बनकर यदा कदा उन्हें परेशान करते रहे। सो एक दिन उन्होंने तय किया कि उन्हें सचमुच समाज से उपेक्षित इन लोगों का दर्द जानना है तो उनके बीच रहना होगा। वे चंपारण जिला के बेतिया शहर की एक वाल्मीकि बस्ती में 3 महीने उनके साथ रहे। वहां घटी 2 घटनाओं ने उनका जीवन बदल दिया। विंदेश्वर ने वहां प्रवास करते हुए देखा कि कैसे एक बच्चे पर सांड हमला करता है, पर लोगों ने सिर्फ उसे इसीलिए मरने को छोड़ दिया कि वो बच्चा एक वाल्मीकि बस्ती का था। दूसरी घटना में एक नवविवाहित को उसकी सास कैसे सिर पर मैला उठाने को मजबूर करती है और नववधू चीत्कार भरती है। मन में नए संकल्प भरकर 1968 में विंदेश्वर पाठक बिहार गांधी शताब्दी समारोह कमेटी में काम करने आए। कमेटी ने डॉक्टर पाठक पर यह दायित्व सौंपा कि उन्हें अभिशप्त स्कैवेंजर भाई बहनों को इस अमानवीय कार्य से मुक्त कराने की दिशा में प्रयास करना है और बापू के सपनों को साकार करना है। अपने गहन अध्ययन व शोध के उपरांत डॉक्टर पाठक ने जेम्स वॉट और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की महान खोजों की तरह ही ट्विन पिट सुलभ शौचालय तकनीक का आविष्कार कर डाला। सुलभ 2 पिट पोर फ्लश सिस्टम ऐसी युगांतकारी तकनीक साबित हुई जिसने देश दुनिया में तमाम स्वच्छता आंदोलन का नजरिया ही बदल दिया। इसमें भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते 2 गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसमें पहले एक गड्ढे का इस्तेमाल होता है और दूसरे को स्टैंड बाय रखा जाता है। जब पहला गड्ढा भर जाता है तो दूसरे को खोल दिया जाता है। 2 वर्षों के उपरांत पहले गड्ढे में जमा मानव मल बैक्टीरिया की मदद से खाद में बदल जाता है, जो न केवल कीटाणु मुक्त होता है बल्कि दुर्गंध रहित भी होता है। इसमें चूना मिलाकर सीधे खेतों में डालें तो ये एक उन्नत किस्म की खाद का काम करता है, जो खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए इसे खेतों में एवं फलों फूलों के वृक्षों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुलभ के आउटडोर म्यूजियम में मानव मल से निर्मित एक दरवाजा रखा हुआ है, जिसे देखकर सभी आश्चर्य करते हैं कि मानव मल से भी ऐसी कलाकृति तैयार हो सकती है। साथ ही मानव मल से छोटी छोटी गेंदें भी बनाई गई हैं, जो स्कूली बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए दी जाएंगी, जिससे मानव मल के प्रति जो लोगों में घृणा होती है उसे समाप्त किया जा सके। आज देश भर में 15 लाख घरों में सुलभ शौचालयों का निर्माण हुआ है। भारत सरकार ने भी सुलभ शौचालय तकनीक को अपनाकर 6 करोड़ घरों में इसका निर्माण कराया है। सुलभ तकनीक को भारत के अलावा चीन, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे कितने ही देश अपना चुके हैं। सुलभ तकनीक एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे महादेश के 2 अरब 40 करोड़ घरों के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। बीबीसी होराइजन ने सुलभ तकनीक को दुनिया के 5 विलक्षण आविष्कारों में से एक माना है। यूएनडीपी समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस तकनीक को अपनाने की सलाह दी है।
डॉक्टर पाठक ही वो शख्स थे जिन्होंने पे एंड यूज की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए 1974 में पटना में भारत के पहले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया। आज अकेले देश भर में 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को सुलभ ने मूर्त रूप दिया है। इसके रखरखाव व प्रबंधन का जिम्मा भी सुलभ के पास है। आज अकेले भारत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन सुलभ शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डॉक्टर पाठक ने मानव मल से उत्सर्जित नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने की दिशा में सुलभ बायोगैस प्लांट का भी आविष्कार किया है। इससे प्राप्त बायोगैस को बहुविध उपयोग में लाया जा रहा है। मसलन लैंप जलाने, खाना पकाने, सर्दियों में हाथ सेकने, पानी गर्म करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस प्लांट से उत्सर्जित जल एक उन्नत किस्म की खाद का काम करता है। चूंकि इसकी बीओडी 10 से भी कम होती है, इसीलिए इसे सीधे नदियों में भी छोड़ा जा सकता है। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक स्कैवेंजर महिला भारत की राष्ट्रपति बने। भारत का राष्ट्रपति बनाने का अधिकार सुलभ को नहीं है, लेकिन सुलभ के संस्थापक डॉक्टर पाठक ने एक पुनर्वासित स्कैवेंजर महिला उषा चौमर को सुलभ का प्रेसिडेंट बना दिया। इस प्रकार गांधी जी का सपना पूरा हो गया। बापू से कहा था कि आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और उनका सपना सच में ही पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे पाठक सर है जो हमारा सपना सबका पूरा कर रहे हैं। सुलभ तकनीक को अपनाने की वजह से लगभग 10 लाख से ज्यादा स्कैवेंजर भाई बहनों को इस अमानवीय कार्य से मुक्त कराया जा सका है। राजस्थान के 2 शहर अलवर और टोंक को तो पूरी तरह स्कैवेंजिंग फ्री किया जा सका है। डॉक्टर पाठक के अभिनव प्रयासों से अलवर, टोंक और गाजियाबाद जैसे शहरों की स्कैवेंजर महिलाओं को मैला ढोने के अमानवीय कार्य से बाहर निकालकर उन्हें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, अचार, पापड़ और बड़ियां तैयार करने की वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई। इन्होंने न्यूयॉर्क के यूएन परिसर में रैंप वॉक किया, देश विदेश घूम आई, गंगा में डुबकी लगाई, ऊंची जाति के लोगों के साथ एक पांत में भोजन किया। डॉक्टर पाठक द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बाकायदा उन्हें ब्राह्मण बना दिया गया। उषा चौमर तो आज सुलभ इंटरनेशनल की मानद प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में 8 नवंबर 2021 से भारत सरकार द्वारा उषा चौमर को पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। डॉक्टर पाठक के प्रयासों से वृंदावन, वाराणसी और उत्तरकाशी की हजारों विधवा स्त्रियों के जीवन में उम्मीदों के एक नए सूरज ने जन्म लिया है। शायद यही वजह है कि कल तक जो माताएं अपने जीवन की इहलीला समाप्त करना चाहती थीं, आज वो होली दिवाली रंगो उल्लास से मनाना चाहती हैं। डॉक्टर पाठक ने अपने अभिनव प्रयासों से नई दिल्ली के पालम इलाके में सुलभ पब्लिक स्कूल की नींव डाली है। 60% बच्चे स्कैवेंजर परिवारों से हैं, जिन्हें यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। स्लम इलाके के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कूल में छात्र और अध्यापक सामूहिक रूप से शौचालयों की सफाई करते हैं, जो गांधी का सपना था। स्कूल में पढ़ रही छात्राओं के लिए यही बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है, जिसका उत्पादन भी यही होता है। डॉक्टर पाठक से प्रेरणा प्राप्त कर सुलभ स्कूल सैनिटेशन क्लब की नींव डाली गई है। आज ये क्लब देश के अनेक स्कूलों के अलावा भूटान, नेपाल और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी सक्रिय है। आज सुलभ विभिन्न CSR कार्यक्रमों के तहत केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों एवं 82 कॉर्पोरेट और सरकारी उपक्रमों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत के लगभग 2500 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। सुलभ के नई दिल्ली स्थित परिसर में विश्व का ऐसा इकलौता सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स स्थित है, जहां शौचालय के उन्नयन यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर इसके आज तक की विकास यात्रा को दिलचस्प तरीके से पेश किया गया है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का यहां तांता लगा रहता है। महाराष्ट्र के शिरडी और पंढरपुर में
विशाल सार्वजनिक शौचालय परिसर का निर्माण सुलभ ने करवाया। शिरडी में यात्रियों के लिए 5000 लॉकर्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। पंढरपुर के 8 परिसरों में 2858 शौचालय बनवाए जा रहे हैं, जिसमें 4 लाख लोग उसका इस्तेमाल प्रतिदिन करेंगे, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा जन सुविधा केंद्र है। सन 1985 में डॉक्टर पाठक ने सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन अर्थात स्वच्छता का समाजशास्त्र की अपनी नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे एक्शन सोशियोलॉजी का महत्वपूर्ण आयाम माना जा सकता है। आज बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, गुजरात के भावनगर विश्वविद्यालय और मैंगलोर विश्वविद्यालय के साथ अन्य 9 विश्वविद्यालयों में भी स्वच्छता का समाजशास्त्र पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर पाठक ने पश्चिम बंगाल में तालाब, कुओं और जल स्रोतों से प्राप्त पानी को आर्सेनिक मुक्त कराने और इसे पीने योग्य बनाने की जल शोधन की एक नई तकनीक विकसित की है। पश्चिम बंगाल के मधुसूदन काटी, बोनगांव, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर जैसे आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में सुलभ स्वच्छ जल मात्र 50 पैसे प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है। इससे यहाँ लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। नई दिल्ली स्थित सुलभ ग्राम में सुलभ वाटर एटीएम भी उपलब्ध है, जहां शुद्ध पीने का जल मात्र 1 रुपए लीटर की दर पर उपलब्ध है। सुलभ की डकमीट तकनीक भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसे पानी में छोड़ने से पानी साफ हो जाता है और इस जल में मछली पालन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के उद्घोष को डॉक्टर पाठक और सुलभ ने नई धार दी है। आज डॉक्टर पाठक समता मूलक समाज के बापू के आदर्शों पर चलकर शांति, अहिंसा व मानवाधिकार की एक नई अलख जगा रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर बिल द ब्लासियो ने डॉक्टर पाठक के नाम पर 14 अप्रैल 2016 को डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक डे के रूप में मनाने की घोषणा की, तो भारतीय रेल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी पिछले दिनों जब डॉक्टर पाठक साउथ अफ्रीका की यात्रा पर गए, तो गांधी जी की पोती इला गांधी ने सुलभ को मिलकर फीनिक्स आश्रम में काम करने का न्योता दिया। गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी जब सुलभ यात्रा पर आए, तो उन्होंने डॉक्टर पाठक को गांधी का मानस पुत्र करार दिया। मैं गांधी जी के बेटे का बेटा हूँ, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक गांधी जी के आत्मा के बेटे। अब तक देश विदेश के अनेक राष्ट्र प्रमुख, गणमान्य लोग सुलभ ग्राम पधार चुके हैं। सुलभ ने अपनी ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी सुलभ द्वारा ग्लोबल अवार्ड दिया जा चुका है। भारत सरकार डॉक्टर पाठक को भी अपने प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म भूषण और गांधी शांति पुरस्कार से अलंकृत कर चुकी है। प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने भी डॉक्टर पाठक को विश्व के प्रमुख 50 लोगों की पांत में खड़ा कर उन्हें डाइवर्सिटी लीडर के सम्मान से नवाजा है। डॉक्टर पाठक को स्टॉकहोम वाटर प्राइज और सेंट फ्रांसिस जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। वे कोमल हृदय के ऐसे महामानव हैं जो हर किसी की मदद को सदैव तत्पर रहते हैं। एक समाज सुधारक, अध्येता के अलावा वे कवि, गीतकार और संगीतकार भी हैं। उनका ये ताजा तरीन गीत जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के सम्मान में लिखा है, ये उनके व्यक्तित्व के उदारता को भी दर्शाता है। भारत का सर ऊंचा किया, वो भारत का लाल है। दुनिया को ताकत बता दिया, ये मोदी जी का कमाल है। सुलभ, एक सुखद संसार के लिए। Thank you so much, Dr. Bindeshwar Pathak. So I want everybody to please give him a very big hand to address the gathering. महोदया, अब मैं आपको हमारे बीच 2-4 शब्द रखने की अनुरोध करती हूँ।
सिक्किम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तवांग जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री कुंगा नीमा लेप्चा जी, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर BS पंत जी, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम SC गुप्ता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन श्री GP उपाध्याय जी, सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, बहुत विलम्ब हो गया है कार्यक्रम का। तो हम जितने लोग उपस्थित हैं, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और जितने स्कूल से आए टीचर्स हैं, विद्यार्थी हैं, सबको हम अपनी ओर से या सभी दर्शक आए हुए हैं, हम अपनी ओर से प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपने फिल्म देख ली है, इसलिए हम उसको फिर नहीं दोहरा चाहेंगे, समय का अभाव भी है। सिर्फ चंद बातें कहना चाहूँगा। एक तो मेरी श्रीमती जी भी आई हुई हैं, श्रीमती अमला पाठक जो है बैठी हुई हैं, जो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। और यह है माननीय मुख्यमंत्री जी को सरप्राइज देना चाहते हैं कि नेशनल अवार्डी उषा जी, जिनको फिल्म भी देखा आपने भी, यहाँ जी तो 8 नवंबर को राष्ट्रपति के हाथों कर कमलों द्वारा इनको पद्मश्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यहाँ जाइए। अब ये 2003 तक 7 वर्ष से माँ के साथ शादी हुई, तो उसका सास के साथ फिर अपने मैला ढो रही थी। तो एक स्कल्पटर था माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो उसने एक मूर्ति बनाई थी। वो मूर्ति लगती थी कि जैसे हंस देगी। उषा को जहाँ मैला से लिपटी हुई थी चारों तरफ से, उस मैले को हमने साफ किया, पढ़ाया लिखाया, काम सिखलाया, मंदिरों में ले गए, गंगा स्नान कराया, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात कराई, अमेरिका, फ्रांस, गांधी के आश्रम में भी गई, एक करते कर ब्राह्मणों के साथ खाना खिलाया। और आज ये ब्राह्मण हैं। तो ये आपको समझ में बात नहीं आएगी कि भारतीय समाज में जो मैला ढो रही हो, जिसको लोग छूते नहीं थे, भारतीय समाज में कुत्ता को छुएगा, कुत्ता को प्रेम से गोदी में रखेगा, लेकिन आदमी कहेगा कि अछूत है ये। तो वहाँ से तो हमने कहा कि माइकल एंजेलो ने तो मूर्ति बनाई जो मूर्ति हंस देगी लगता है, लेकिन हमने जो मूर्ति बनाई ये हंसती भी है, बोलती भी है, लिखती भी है और हंसती भी है। ये जीता जागता है। उसका तो पत्थर की मूर्ति थी माइकल एंजेलो की। भारतीय समाज में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है कि 5000 6000 वर्ष से जो मानवीय प्रथा रही थी, जिसको मिटाने के लिए गांधी ने कहा था कि एक तो मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, रीबोर्न नहीं हो, यदि हो
तो वाल्मीकियों घर में, जो शब्द का प्रयोग हुआ है मैं नहीं करना चाहता हूँ, बैन शब्द है वो, तो वाल्मीकियों के घर में हो, ताकि उनको इस अमानवीय अस्वास्थ्यकर काम से निकाल सके। अब जब हमने ये कर दिया कि सभी जितने लोग महिला ढोते थे, करीब 10 लाख थे उस समय में, तो अब इस काम से निकाल करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ दिया इनको हमने। अभी ब्राह्मण कैसे हो गए, ये आश्चर्य लगेगा आपको भाई कि जब 6 वाल्मीकि थे तो फिर ब्राह्मण कैसे हो गए। तो बीबीसी के 2 हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, मतलब एक हस्बैंड वाइफ आए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए देश में ये जाति प्रथा ठीक नहीं है, और जाति से जाति हो जाती है वो ठीक नहीं है, अछूआछूत ठीक नहीं है। जब उनका कहना हो गया तो हमने कहा कि ये बात सही है कि छुआछूत तो सही नहीं है। आप कहीं बैठ जाइए ऐसा जी, या उधर बैठ जाइए, जगह नहीं है तो वहाँ बैठ जाइए, जगह है बैठ जाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री से आपको बाद में चकरा देंगे, फोटो भी खिंचवा देंगे, पहले बैठ जाइए आप। तो उनके जो लड़का खेल रहा था छोटा सा 7-8 वर्ष का, तो मैंने पूछा कि लड़के का धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, तो मैडम बोलती हैं ओह ही इज ए क्रिश्चियन। मैडम हाउ इज क्रिश्चियन, नो ही इज आवर सन। मैडम because he is your son and therefore he has become Christian, let him grow 18 years of age and then he will decide. So the way he has become Christian because of your son, so in India also ऐसे ही होता है, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण का हो जाता है ये। तो उस समय क्या किया हमने, क्योंकि हरदम नई थ्योरी निकालते रहते हैं हम, तो हमने थ्योरी निकाल दी हॉरिजॉन्टल थ्योरी ऑफ कास्ट सिस्टम। अभी तक चल रहा है वर्टिकल थ्योरी, ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय बाद में, वैश्य बाद में, शूद्र बाद में, ये वर्टिकल थ्योरी चल रही थी। हम समाजशास्त्री हैं, हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया कि भैया जब भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि आप चाहो तो धर्म बदल सकते हो, तो जब धर्म बदल सकते हो तो जाति क्यों नहीं, तो आप जाति चुन लो अपने मन से। तो इन लोगों से कहा हमने, जो देखा संस्कृत पढ़ा इसी सब लोग, तो कहा कि आप ब्राह्मण हैं, हमको ब्राह्मण बना दीजिए हम लोगों को, जब बनना ही है दूसरा जात तो ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाए हैं, बन जाओ। अब ये लोग अल्बर्ट टॉक में ये लोग ब्राह्मण हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, सब भी करते हैं। अब अंबेडकर ने कहा था कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तक नहीं मैं मानूंगा कि छुआछूत समाप्त हो गया है। और आप लोग जो जाना चाहें अल्बर्ट टॉक जाके स्वयं जाके दिखाइए कि किस प्रकार उषा के जो लोग हैं किस प्रकार से उनको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं, उनको जो उनको छूते नहीं थे। एक जीवित कहानी उनकी टॉक की है कि एक महिला को एक शादी में गेट से बाहर रखा था खाने के लिए, और इस बार अभी हाल में कार्ड दे के बुलाया उसको, ड्राइंग में बैठाया, शादी भाग लिया, खाना खिलाया, तो वहाँ पर एज ए ब्राह्मण ये लोग स्वीकार किए गए हैं। तो ये आपको बता दिया उषा को। हम सुलभ का गिनाने नहीं जा रहे हैं कि क्या सुलभ का सब देख लिया आपने, जो बाकी है वो बाकी देखेंगे, उसको हम रिपीट नहीं करने जा रहे हैं, समय भी कम है। तो एक तो ये बता दिया आपको हमने। दूसरा ये बता दिया है कि जैसे आइंस्टाइन
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन, इन लोगों ने आविष्कार, जेम्स वाट ने आविष्कार किया था, वैसे हमने आविष्कार किया 2 फीट लकड़ी का जो देखा आपने। इसके आविष्कार होने से क्या हुआ, हमने तो 16 लाख बनाया शौचालय सीधा सुलभ से, भारत सरकार ने 10 करोड़ बनाया है, वो फिल्म में 6 करोड़ लिखा हुआ है, तो 10 करोड़ शौचालय भारत सरकार ने बनवाए। बांग्लादेश पूरा बन गया शौचालय, सुलभ शौचालय, वियतनाम में पूरा बन गया, और जितने लोग के पास शौचालय अभी दुनिया में नहीं है उसके लिए यही टेक्नोलॉजी कारगर है। सीवर से संभव ही नहीं है, असंभव है। पब्लिक टॉयलेट का आप देख लिया, बायोगैस का देख लिया, हम रिपीट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रांति जो पैदा हुई, इसमें जो मेरा जो है, जो मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठे हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी और चीफ से बैठे सब लोग बैठे हुए हैं, और शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, जो हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने 1970 में कहा था दारोगा प्रसाद राय कि सरकार या संस्था अकेले काम नहीं कर सकती है, दोनों मिल के काम करे तो ये काम हो सकता है। और एक रिकॉर्ड है जो हम वो बात कहेंगे जो आप नहीं देखा फिल्म में, कि 2 थे IAS अफसर सीनियर, PK मिश्रा, अरुण प्रसाद, हमारे यहाँ सेमिनार हुआ था कलकत्ता में, लोग गए थे पटना प्लेन से देखने के लिए। तो वो दोनों आदमी ने हमको बुलाया कि भाई इधर आइए, कितने लोग बाहर के हैं, विदेश के हैं, उनके साथ 80 आदमी हैं, और इंडिया के हमसे 150 आदमी हैं। तो जो इंडिया का है उसको जूस आप लोग पिलाइए, और ऑन रिकॉर्ड आपको हम बोल रहे हैं। तो अरुण और हम जो हैं, ये PK मिश्रा सीनियर से, तो क्या अरुण और हम जो हैं ये 80 लोगों को जूस पिलाएंगे। 2 सीनियर IAS अफसर एक NGO की पार्टी में जूस अपने हाथ से पिलाया गेस्ट को, और सब जब चले गए खा पी के 11 बजे, तब दोनों गए। तो ये है कि सरकार और संस्था मिलके काम करे तो कोई भी काम बढ़िया से हो सकता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमने 21 यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो 9 लिखा हुआ है, 21 यूनिवर्सिटी में ये सारे विषयों की पढ़ाई हो रही है। और हम समय नहीं लेंगे, आपको फिर कभी बुलाइएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो 21 यूनिवर्सिटी में ये हमारे बारे में, सुलभ के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, मेंस्ट्रुएशन और हाइजीन के बारे में, ये सारी पढ़ाई 21 यूनिवर्सिटी में हो रही है, जिसमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक बेंगलोर में है, और एक जो है सो अभी बोध गया दक्षिण बिहार में स्टार्ट हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमने जिस विषय पर काम किया आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। कोई NGO के किए गए काम को यूनिवर्सिटी ने पढ़ाने के लिए BA और MA में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हम लोग के काम को इतना उसको लगा कि उसको हमने स्वीकार किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि आज शिक्षा विभाग द्वारा, हम इसलिए कर रहे हैं इस बात को, कि शिक्षा विभाग द्वारा जिस प्रकार से शिक्षा के महत्व के बारे में मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दिलवाया है, शिक्षा मंत्री का आशीर्वाद दिलवाया है, सभी टीचर को जो पुरस्कार दिया है, स्टूडेंट को पुरस्कार दिया है, और सबको दिया है, शिक्षा फैकल्टी के लोगों को, एक बहुत बड़ा एवं जॉब किया है आपने। इन लोगों को पुरस्कार दे करके इनकरेज किया है कि टीचर्स अच्छे से पढ़ाए, आप बच्चे ठीक से पढ़ें, तब जाके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। बाकी हम आगे नहीं बोलेंगे, हमारा विषय लगभग लंबा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी बात सुनने के लिए, शिक्षा मंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी साहब को,
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब उपाध्याय जी को और सबको जो है ये हमने ये जो समय दिया है इसके लिए बहुत, और जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। टूरिज्म मिनिस्टर से अभी बगल में बैठे थे हमारे, बैठे हुए हैं, तो ये इतना बढ़िया है कि शिक्षा जगत में ये हमने ऐसा कार्यक्रम अपने डालते पहले हुआ होगा, लेकिन हमने पहली बार देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सर सॉरी सर, मैं आपके बिना इजाज़त के बिना थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी खुशी हो रही है। यहाँ पर मुझे बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ों की संख्या है यहाँ पर, और जेंट्सों की भी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को मंच पर बैठे हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। देखिए, पहले मैं कुछ जानती नहीं थी, नहीं तो बोलना जानती थी, और जो मैं हंसती हूँ तो सर 2003 से हंसती हूँ मैं, क्योंकि 2003 से पहले मैं मेला ढोने का काम करती थी, तो हर रोज़ ये ऐसा लगता था कि आज ही मर जाऊँ मैं। लेकिन आज जब से सुलभ में आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि भाई और जिए हम, क्योंकि इज्जत और सम्मान डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों को दिलाया है। पहले हम लोगों से बहुत दूर से चलते थे वो लोग, जैसे कि हम लोग मेला ढोते थे तो आपको पता है गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है, तो ऊपर से वो लोग पानी पिलाते थे, ऊपर से खाना डालते थे और पैसे उस तरह से फेंक के देते थे, तो उसी तरह से उन लोगों का व्यवहार था। लेकिन बस वही काम मेला ढोने का मैं कर रही थी, तो पता नहीं हम लोगों का तो किस तरह से भाग्य बदला, और डॉक्टर पाठक जी वहाँ पर आए हमारे अलवर राजस्थान में, और ये पूछने लगे कि भाई ये काम तुम क्यों करते हो। अब देखिए, इतना गंदा और घिनौना काम कौन करना चाहता, लेकिन हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा था, मेला ढोने का परंपरा चली आ रही थी, तो वही काम हम कर रहे थे। तो हमको इनकी बातों में पहले विश्वास नहीं था। हमने जैसे कहा अपनी सासू माँ से कि अम्मा कोई एक आदमी आए और एक काम के लिए कह रहे हैं छोड़ने के लिए, तो मेरी सास ने कहा कि ऐसा कोई आदमी नहीं आया आज तक कि तुमसे मेला ढोने का काम छुड़ा सके। तो इन्होंने कहा तुम लोग दिल्ली आओगे। अब देखिए, दिल्ली हमको ऐसा लग रहा था उस टाइम जैसे तो अमेरिका। आज तो मैं हर रोज़ फ्लाइट की सैर करती हूँ उनकी वजह से। तो जब हम सुलभ में आए तो जैसे इस तरह आज सब लोगों का तुम्हारा स्वागत हो जाए चादरों माला से, उसी तरह से हम लोगों का भी हुआ था सुलभ में। तो उसी टाइम हम लोगों को कभी इज्जत और सम्मान नहीं मिला था, लेकिन जब सुलभ में आए तो हम लोगों को इज्जत और सम्मान बहुत अच्छे से मिला था। जब हम वापस गए लौट के दिल्ली से सुलभ से अलवर के लिए, तो जिन्हों का घर मेला ढोती थी तो वो मुझसे कहने लगी कि मैडम 2-3 दिन के लिए कहाँ गई थी तू। तो मैंने कि कहाँ गए थे, अब तुम्हारे घर तक काम नहीं करूँगा मेला ढोने का। तो उनका वही सवाल था जो कि मेरी सासू माँ का था। उनने कहा ऐसा कोई आदमी नहीं आया किस काम से तुम्हें छुड़ा सके। मैंने कहा देखा जाएगा, लेकिन आपके काम नहीं करूँगा मैं। तो देखिए, वहाँ पर एक नई दिशा के नाम से संस्था खोली गई है। वहाँ पर हम लोग इस सब सामान बनाते हैं, और जैसे कि हम लोग सामान बनाने लगे तो हमने डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर हम सामान तो हम बना लेंगे, लेकिन जो लोग हमसे इतनी दूर रहते हैं, छुआछूत करते हैं, हमारी छाया से भी इतनी दूर रहते हैं वो लोग, तो हम लोगों का मतलब सामान वो कैसे खरीदेंगे, कैसे खाएंगे वो। तो साहब ने कहा तुम लोग सामान तो बनाओ, सामान मैं खरीदूँगा, सुलभ खरीदेगा। आज देखिए, आज तक ये तो खरीद ही रहे, लेकिन जिन्हों के घर में शौचालय साफ स्वयं करती थी, लेकिन आज वही लोग हैं जो कि हम सामान बनाते हैं, अचार, पापड़, जबे, कॉटन की बत्तियाँ, जूट बैग, सिलाई, पार्लर का काम, ये सब हमसे कराते हैं, और जो हम सामान बनाते हैं वो खरीद के खाते हैं। तो देखिए, हम लोगों को अब इतनी खुशी होती है वहाँ पर कि वही उसी गिलास से वो लोग हमें पानी पिलाते हैं, उसी चेयर पे हमको बिठाते हैं। तो अब वहाँ पर अलवर में टोंक में आप वहाँ पर जाके देखिए, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। समाज के मुख्य धारा से हमको डॉक्टर पाठक जी ने जोड़ा है। तो आपके सामने पहले तो एक सम्मान और मुझे मिला है सफाईगिरी का, 80 घाट की जो सफाईगिरी था वो डॉक्टर पाठक जी का था, लेकिन उन्होंने मुझे दिलाया था कि इनको मिलना चाहिए वो, और आज मुझे सम्मान जो मिला है राष्ट्रपति के हाथों से, तो ये मुझे सम्मान मिला है।
तो देखिए, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे इतना बड़ा सम्मान, एक मेडल होने वाले के लिए इतना बड़ा सम्मान मुझे राष्ट्रपति जी देंगे अपने हाथों से। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पर जो मैं आई हूँ रानीपोल में, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ पढ़ें अच्छे से और आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोगों में क्या करते हैं कि लड़कियाँ लेडीज़ अधिक करके घर में रहती हैं। तो मैं सभी लेडीज़ों से कहना चाहती हूँ, यहाँ तो लेडीज़ सभी ठीक है, अपना बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सभी लेडीज़ बाहर निकले प्लीज़ और कुछ सीखें, क्योंकि हम लोगों ने तो सुलभ में सीखा है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छूत नहीं है। अब मैं सबको यही समझाती हूँ। और हर जगह पर साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि यहाँ पर बहुत ही साफ़ सफाई है और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके। यहाँ पर इतने बड़े बड़े आदमियों से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग देश विदेश भी जाते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूँगी मैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज उषा चौमड़। I live in Alwar, Rajasthan. I get up early in the morning. I am from Nai Disha Sulabh International Social Service Organization, Alwar, Rajasthan. Our founder's name is Dr. Vindeshwar Pathak. We come to our center 8-9 a.m. Then we all attend the prayer. Then we go to our adult education class. Then after we all do our work, cutting and embroidery, boutique care, make some jute items, vermicelli, pickles, candles, snacks. Our production is supplied to Alwar, Tijara, Delhi, and we wish the name of our organization become high. Thank you. जो हम लोगों को ब्राह्मण बनाए सर, सॉरी सर, थोड़ा सा बोलूँगी। ब्राह्मण बनाए हम लोगों को तो थोड़ा सा श्लोक बोलूँगी मैं। शांताकारं भुजग सेनभ पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यान गम्यं वंदे विष्णु बभु भैरव सर्वलोकैकनाथं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहम्। ॐ गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतानव संस्मरे नित्यं वेदवाणी पर्वत्येत् नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनीं त्वामेहं प्रातः नित्यं विद्यादानव च देहि मे कर्पूरि गौरविकर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरणं तमेव शर्मं मम देवि देवम्। ॐ सेना भवतु शनो भुनक्तु शवीरकर्वावै तेजस्विनाबाधितु नमस्तु मा विद्विषावै सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम उषा पद्मश्री, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके उच्च वाणी के लिए। Her talk was really inspiring and really motivating, right? We are really proud that she's with us today.
Thank you so much, madam. And I would also like to thank Padma Bhushan Dr. Bindeshwar Pathak for his valuable and profound knowledge. Thank you so much, sir, for your sharing. Thank you. It's really a proud moment that we have with us Madam Usha too. Thank you, madam. एकैचोटि मनाउन भनी भेला भएका छौँ र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री प्रेम सिंह तामाङज्यू, मन्त्री परिषदका मान्य मन्त्रीगण, हामीसित आज पद्मविभूषण डाक्टर बिन्देश्वर पाठक आजै हामीसित अर्को एक व्यक्तित्व नै आज यहाँ जो आउनु भएको छिन्, श्रीमती उषा चौमरज्यू। उहाँ पद्मश्री उपाधिदेखि स्वयं राष्ट्रपति महोदयले उहाँलाई चयन गरेर यो पद्मश्रीको उपाधिबाट उहाँलाई सुशोभित गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा आजको यो सभामा एक दुई वचन बोल्नुपर्ने यो एउटा म्यान्डेटरी हो र म सोच्दैछु एक्सटेम्बर बोलौँ कि या लेखेको बोलौँ, किनभने लेखेर जुन चाहिँ दिएको छ यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू छ तपाईँको शिक्षा सम्बन्धी। कान ठाडो पारेर आँखा खोलेर तपाईँले सुन्नुहोस् र सानो एउटा कुरो हाम्रो आज यहाँ पद्मभूषण डाक्टर बिन्देश्वर पाठकजी यहाँ आउनुभएको छ र उहाँप्रति म धेरै नै म मेरो मनमा उहाँप्रति ठुलो आदर म गर्छु। कारण किनभने उहाँले जुन चाहिँ हाम्रो भारतमा एउटा नराम्रो चलन थियो, अनटचेबिलिटी, अछुतको चलन थियो। महात्मा गान्धीले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ आई विल नट टच अनटचेबिलिटी विथ अ पेयर अफ टङ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। चिम्टाले म अनटचेबिलिटी छुँदिनँ, तर म हातैले म अनटचेबिलिटी जुन उहाँले छोएर गर्छ भन्ने मुताबिक यहाँ डाक्टर बिन्देश्वर पाठकज्यूले त्यही हाम्रा महात्मा गान्धी राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले जुन किसिमको एउटा यो आन्दोलन चलाउनु भएको छ त्यसैलाई अनुसरण गरिकन उहाँले पनि भारतबाट जुन चाहिँ अनटचेबिलिटी छ यसलाई चाहिँ मेटाउनु पर्ने भनेर उहाँले पनि एउटा जुन कदम चलाए। अघि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो। भन्नु पर्यो भने तपाईँको भारतको महान सन्त रविदासले जुन चाहिँ भन्नुभएको थियो कुरा, जात पात पूछे नहीं कोई जो हरि को भजे सो हरि का होय भन्ने, त्यो कुरालाई सार्थक उहाँले बनाउनु भएको छ। अघि यहाँ तपाईँको हाम्रो उषा चौमाले हेर्नुभयो भन्नुभयो तपाईँलाई, उहाँ त एउटा के भन्छ यसको नाम महिला टाउकोमा मैला बोकेर हिँड्ने खाले उहाँहरू एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो। तर कुन किसिमले हाम्रो डाक्टर बिन्देश्वरले यो एउटा आन्दोलन ल्याएर उहाँ जस्तो एउटा महिला जस्तो टाउकोमा मैला बोकेर हिँड्ने एउटा महिलालाई समाजको अगाडि उहाँलाई अगाडि बढाएर समाजको अगाडि उहाँलाई त्यो अँगालिएकोले गर्दाखेरि आज स्वयं राष्ट्रपतिले उहाँलाई जुन चाहिँ पद्मश्रीको चयन गरेको, यस्तो किसिमको पद्मश्री पद्मभूषणहरूको चयन चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भने त्यो नोमिनेसन हुन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा के छ, नोमिनेसन नभएर एक्चुअली कसले के गर्दैछ त्यसको मुताबिक पाउँदैछ, चयन हुँदैछ भन्ने चाहिँ हाम्रो अगाडि एकदमै के भन्छ स्पष्ट रूपमा भर्खरै जुन चाहिँ यो राष्ट्रपति भवनमा जुन चाहिँ प्रोग्राम भएको थियो त्योबाट हामीले चाल पाउँछौँ। डॉक्टर बिन्देश्वर दुबे जी, हम आपके प्रति बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने सिक्किम में भी ये सुलभ इंटरनेशनल का जो सुविधाएं हैं हम लोगों को उपलब्ध करा के हमारे प्रत्येक स्कूल, बहुत से स्कूल में क्लब भी खुलवा के ये जो आपके मैसेज हैं, मैसेज हम लोगों ने यहाँ पे स्कूल के माध्यम से इसको चारों तरफ फैलाने की कोशिश हमने किया। इसमें हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। आपके माध्यम से जो कुछ हम लोगों को वाटर, हाइजीन और सैनिटेशन के जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध किए गए उनके लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपके दीर्घ आयु के निम्ति, आपके स्वास्थ्य के निम्ति भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसी प्रकार से हम लोगों को आप मार्गदर्शन देते रहें और इसी प्रकार से
हमारे छोटी से राज्य सिक्किम को आप हमेशा अपने हृदय में रखें। With these few words, I would like to conclude my short speech. सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामी माझ दुईटा शब्द राखिदिनु हुन भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। टासीडिले खामरे माझमा उपस्थित हाम्रो विशिष्ट अतिथि, हाम्रो पाहुना भनौँ, यानी राष्ट्र गौरव सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संस्था का संस्थापक पद्मा भूषण डॉक्टर बिंदोसर पाठक जी अनि उहाँका धर्मपत्नी मैडम, हाम्रो माझमा उपस्थित सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस अर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष पद्मश्री उषा चौमान जी, जो हाम्रो समक्षमा आएर उहाँले आफ्नो कुराहरू हामी समक्षमा राख्नु भएको छ। अनि आज हाम्रो समक्षमा विशेष गरेर विद्वान व्यक्तित्व है हाम्रो सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक श्री पद्म भूषण डाक्टर बिन्देश्वर पाठक जी हाम्रो समक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँको मैडम पनि हुनुहुन्छ र उहाँले सुलभ इंटरनेशनल को माध्यमबाट हामीलाई राज्य सरकारलाई धेरै सहायता गर्नुभएको छ र उहाँले हाम्रो देशमा कतिको मुभमेन्ट ल्याएको रहेछ, कतिको सुदृढीकरण गरेको रहेछ, सबै तपाईले बुझ्नुभयो र उहाँलाई म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा तरफ से मैं आज पाठक जी को और उनका परिवार को, उनको टोली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपका आशीर्वाद हमारे राज्य को मिलते रहे और आपका मार्गदर्शन मिलते रहे। यस्तो विद्वान व्यक्ति तो हामीले पाउँदैनौँ र हाम्रो समक्षमा आज हाम्रो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस अर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष प्रेसिडेंट पद्मश्री उषा चौमेलले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। तपाईले दर्शाउनु भयो कुनै पनि व्यक्ति सानो भएर जातले हुँदैन, इच्छा शक्ति भयो भने एउटा नारी पनि माथि पुग्न सक्ने रहेछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अनि उहाँकोबाट उदाहरण लिएर हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूले अगाडि बढ्ने म विशेष तपाईहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र जय हिन्द। Kindly meet our of the stage. Thank you. Have a great evening ahead.